Good morning, student. Myself Chirag Sukhani, and I'm going to teach you financial management subject. And we will continue our chapter that is dividend policy. And in that, there is a calculation part of the Walters model. Okay. Now today in this session, we will calculate six sum. Now the earning per share of the company is rupees 10. The equity capitalization rate 20%, internal rate of return on the retained earning 10% using Walters formula, and we have to give the answer of A, B and C. A. What should be the optimum payout ratio of the company? B. What should be the price of the share at optimum payout ratio? And C. How should this price be affected if different payout ratio that is 80% were employed? Okay. So मैंने आपको बोला है कि जब भी आप आंसर कैलकुलेट करो, ओके, सो फर्स्ट आपको क्या देखना है, वी हैव टू कंपेयर आर एंड के, बिकॉज वॉल्टर्स मॉडल ने मेन वही रिलेशनशिप एक्सप्लेन किया है कि आर एंड के को डिटरमाइन करके वॉल्टर्स ने कंपनी को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया, वेदर इट इज ग्रोइंग फर्म, वेदर इट इज नॉर्मल फर्म और वेदर इट इज डिक्लाइनिंग फर्म. ओके, सो टुडे इन दिस सेशन we will calculate six sum. Now the earning per share of the company is rupees 10. So EPS of the company is given rupees 10. Then equity capitalization rate 20%. Equity capitalization rate यानी KE, that is 20%, 0.20. Then internal rate of return on the retained earning is 10%. Internal rate of return on the retained earning indicate R. R is what? 0.10. Okay. Now we have to use the Walters formula. Now based on this information, first we have to determining which firm it is. Okay. So here KE क्या दिख रहा है 20% और R क्या है 0.10. That means what? R rate of return on the firm's investment it is lesser than what the shareholders expect. Okay, यानी R is lesser than KE. Okay, now R is lesser than KE, so which type of firm it is? It is a case of declining firm. And what should be the optimum payout ratio of the company? That is 100%. Okay, so आपका A answer. A. What should be the optimum payout ratio of the company? So आपको क्या करना है, कंपेयर करना है किसको, R and K. So since R is lesser than K है, that is R is lesser than K यानी 10% is lesser than 20% ना, 10% is lesser than 20%. So it is a case of which firm? It is a case of declining firm. It is a case of declining firm. Okay, thus optimum payout ratio of the company will be 100%. Clear? So आपका आंसर 1 is over कि since R is less than K यानी 10% is lesser than 20%. Okay, so it is a case of declining firm, and for a declining firm the optimum payout ratio of the company will be 100%. Why it is 100%? बिकॉज जो री इन्वेस्टमेंट का रेट है वो लेस है एज कम्पेयर टू व्हाट द शेयर होल्डर्स एक्सपेक्ट. एंड शेयर होल्डर्स एक्सपेक्ट दैट के वॉट एवर प्रॉफिट इट इज डिस्ट्रीब्यूट टू अस, हम लोग को दे देंगे, वो प्रॉफिट हम लोग को दे देंगे. सो वी कैन इन्वेस्ट समवेयर एल्स एंड वी कैन अर्न 20%. ओके, सो वो लोग का एक्सपेक्टेशन है 20%, बट कंपनी का री इन्वेस्टमेंट का रिटर्न क्या है 10%. सो हमारी कंपनी कौन सी कैटेगरी में आ जाएगी, डिक्लाइनिंग फर्म. सो डिक्लाइनिंग फर्म के लिए इट इज बेटर whatever profit it is earned it is distributed to the shareholders so that wealth of the shareholders maximize. Okay, so जितना भी profit है सब दे देना चाहिए, that is called as what 100% pay out कर देना चाहिए. So B में क्या आएगा आपका, what should be the price of the share at optimum payout ratio? What should be the price of the shares at optimum payout ratio? Now what should be the price of the shares at optimum payout ratio? That means what, we have to calculate the price of share. We have to calculate the price of share at the rate of 100% payout. आ रहा है ना समझ में, प्राइस ऑफ द शेयर्स एट द रेट ऑफ 100% payout.
क्लियर। नाउ अभी आपको फॉर्मूला तो याद होना ही चाहिए। सो प्राइस ऑफ द शेयर इज इक्वल टू व्हाट, डी प्लस आर अपॉन के ई इंटू ब्रैकेट ई माइनस डी, ई माइनस डी अपॉन के। क्लियर ना। नाउ डी प्लस आर अपॉन के ई माइनस डी अपॉन के। नाउ यहाँ फॉर्मूला आपको याद रखना ही है। नाउ डी इज कैलकुलेटेड ऑन, टेल मी, डी इज कैलकुलेटेड ऑन ईपीएस। ओके, सो डी क्या मिलेगा, ईपीएस के ऊपर कैलकुलेट होगा। और डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना है, 100%। 100%, सो 10 का 100% आप निकालोगे तो डी क्या आएगा, 10 आएगा। ओके, सो डी इज व्हाट, 10 प्लस आर इज गिवन 0.10, के इज गिवन 0.20 into bracket EPS 10 minus D 10 upon KE 0.20। क्लियर। नाउ 10 का 10 रहेगा प्लस 0.10 डिवाइडेड बाई 0.20 करोगे तो आंसर आएगा 0.5 इंटू ब्रैकेट 10 माइनस 10, आंसर 0 डिवाइडेड बाई 0.20। सो 10 का 10 रहेगा प्लस पहले ये जाएगा 10 प्लस 0.5 मत कर देना। ओके, सो पहले ये कैलकुलेशन होता है। सो 0.5 इंटू 0, एनी अमाउंट 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0 डिवाइडेड बाय 0.20। ओके, सो 10 प्लस 0 10 डिवाइडेड बाय 0.20। सो 10 डिवाइडेड बाय 0.20, आंसर क्या आएगा, ₹50 रुपीज़ आएगा। क्लियर। प्राइस ऑफ द शेयर एट द 100% पे आउट इज व्हाट, ₹50। क्लियर। नाउ सी पार्ट क्या पूछा, हाउ शुड दिस प्राइस बी अफेक्टेड इफ द डिफरेंट पे आउट से 80% वर एम्प्लॉयड। ओके, तो सी में आपको क्या करना पड़ेगा, प्राइस ऑफ द शेयर्स एट 80% पे आउट। सो सी हम कैलकुलेट करेंगे, प्राइस ऑफ शेयर एट द रेट ऑफ 80% पे आउट। क्लियर। फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा ना, जो इंफॉर्मेशन है वो ईपीएस इज 10, वो तो सब सेम ही है। सो फॉर्मूला क्या है, प्राइस ऑफ द शेयर इक्वल टू डी प्लस आर अपॉन के ई इंटू ब्रैकेट ई माइनस डी अपॉन के। नाउ प्राइस ऑफ द शेयर एट 80%। ओके, नाउ डी इज कैलकुलेटेड ऑन ईपीएस। सो ईपीएस कितना दिया है, 10। सो 10 का कितना परसेंटेज, 80%। सो डी क्या बन जाएगा अभी, 8। क्लियर। सो डी 8 प्लस आर अपॉन के ई। सो आर तो सेम ही है, आर इज व्हाट 0.10, के ई इज व्हाट 0.20। ईपीएस 10 माइनस डिविडेंड 8 डिवाइडेड बाय 0.20। क्लियर। 8 का 8 रहेगा प्लस 0.10 डिवाइडेड बाई 0.20, 0.5 इंटू ब्रैकेट 10 माइनस 8 2 डिवाइडेड बाई 0.20। सो 8 का 8 प्लस 0.5 इंटू 2 1 डिवाइडेड बाई 0.20। सो 8 प्लस 1 9 डिवाइडेड बाई 0.20। सो आंसर क्या आएगा, ₹45। प्राइस ऑफ द शेयर इज व्हाट, ₹45। बट आपको खाली कैलकुलेट नहीं करना है, आपको कंक्लूजन दिखाना है। क्वेश्चन क्या पूछा, हाउ शुड दिस प्राइस बी अफेक्टेड इफ द डिफरेंट पे आउट से 80% वर एम्प्लॉयड। ओके, सो आपको आंसर देना है ये प्राइस कैसे अफेक्ट हुआ। ओके, सो प्राइस ऑफ द शेयर्स क्या हो गई हियर, और हेंस प्राइस ऑफ द शेयर्स क्या हो गई, टेल मी, हेंस प्राइस ऑफ शेयर क्या हो गया, 50 से 45 हो गया ना। सो प्राइस ऑफ द शेयर डिक्रीज हो गया, प्राइस ऑफ द शेयर डिक्रीजेस एज 80% वर एम्प्लॉयड। प्राइस ऑफ द शेयर डिक्रीज हुआ इफ पे आउट रेशियो is different
from optimum payout ratio. Okay, प्राइस ऑफ द शेयर्स डिक्रीज हुआ if payout ratio 80% यूज किया from the optimum payout ratio that is 100%. Okay, optimum payout ratio is employed because it is a case of declining firm. It is a case of declining firm. Okay, so declining firm में क्या होता है? So price decreases. Price क्या होती है? Decreases as payout ratio decreases. Price decrease होगा as the payout ratio decreases. आया समझ में? So this is a sixth sum regarding the declining firm. Clear? Now, seventh sum. EPS of the company is given 10. Now ये sums आपको अच्छे से समझना है. EPS ₹10. क्लियर कट दे दिया. EPS ₹10. The rate of capitalization applicable to is 10%. Rate of capitalization यानी KE कितना है? 10%. The company has before it the option of adopting payout ratio. Payout ratio दे दिया. Payout ratio कितना यूज करना है? 20% और 40% और 80% यूज करना है वॉल्टर्स फॉर्मूला एंड कंप्यूट करना है मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी शेयर इफ प्रोडक्टिविटी ऑफ रिटेन्ड अर्निंग. प्रोडक्टिविटी इज नथिंग बट अर्न करे. ओके, सो प्रोडक्टिविटी ऑफ रिटेन अर्निंग दैट इज रेट ऑफ रिटेन अर्निंग इज 20% होगा तो क्या क्या प्राइस आएगा? 10% होगा तो क्या प्राइस आएगा? और 8% होगा तो क्या प्राइस आएगा? एंड आपको बोला है कि व्हाट इन्फरेंसेस कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द अबव एक्सरसाइज. इन्फरेंसेस यानी कौन सा कंक्लूजन आप ड्रॉ कर सकते हो फ्रॉम द अबव एक्सरसाइज. सो EPS 10 rupees is given, इक्विटी कैपिटलाइजेशन at 10% is given, पे आउट रेशियो 20, 40 और 80. इन शॉर्ट आपका यहाँ पे कितने सम्स बन जाएंगे? 9 सम बन जाएंगे. ओके, सो आपका पहला ए कैलकुलेट करना पड़ेगा. ए ना ए में आर कितना लेना है? आर 20% लेना है. ओके, बाकी सब सम्स में दे दिया था, खाली आर चेंज होता रहेगा. EPS 10 rupees is given, KE 10% is given and payout ratio same. payout ratio कितना दिया है? 20%, 40% and 80%. ओके, सो आपको क्या कैलकुलेट करना है? मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी शेयर. ओके, सो आपको प्राइस कैलकुलेट करना है, प्राइस ऑफ द शेयर. नाउ वन टाइम फॉर्मूला लिख लो, फिर बाद में हर एक टाइम लिखना जरूरी नहीं है. सो प्राइस ऑफ द शेयर D प्लस R अपॉन K इंटू ब्रैकेट E माइनस D अपॉन K. सो वन टाइम लिख लो ये फॉर्मूला. ना अभी आपको क्या कैलकुलेट करना है? प्राइस. ना फर्स्ट हम लोग क्या लेंगे? R इज गिवन 20%, EPS इज 10 एंड KE 10. सो यहाँ पे अभी क्या चेंज होता रहेगा? पे आउट 20% पे व्हाट इज प्राइस, पे आउट 40 पे व्हाट इज प्राइस एंड पे आउट 80 पे कितना प्राइस है. ओके, सो प्राइस कैलकुलेट करेंगे एट 20% पे आउट. फर्स्ट में क्या करेंगे? 20% पे आउट. क्लियर? नाउ आपको पता है अभी मैं अगेन कैलकुलेट मतलब एवरी टाइम नहीं दिखाऊंगा, अभी आपको थोड़ा समझना है. D is calculated on EPS. ओके, सो EPS कितना है? 10. सो 10 का 20%, D क्या बन जाएगा? 2 प्लस R इज व्हाट? 20% यानी 0.20, KE 0.10 इंटू ब्रैकेट E 10 माइनस D 2 divided by KE 0.10.
ना ये सम्स में कुछ आपको ऑप्टिमम ऐसा कुछ फाइंड आउट नहीं करना, आपको खाली कंक्लूजन डिराइव करना है, बिकॉज यहाँ पे पे आउट रेशियो दे ही दिया है आपको 20, 40 एंड 80, एंड वी हैव टू कैलकुलेट द प्राइस ऑफ द शेयर एट 20%, वी हैव टू कैलकुलेट प्राइस ऑफ द शेयर एट 40%, एंड वी हैव टू कैलकुलेट प्राइस ऑफ द शेयर एट 80%. क्लियर ऑल ऑफ यू? ओके, सो यहाँ पे 2 का 2 रहेगा प्लस 0.20 डिवाइडेड बाई 0.10, कितना आएगा 0.20 डिवाइडेड बाई 0.10, 2 इंटू ब्रैकेट 10 माइनस 2, 8 डिवाइडेड बाई 0.10. सो 2 का 2 प्लस 2 इंटू 8 कितना होगा 16 डिवाइडेड बाई 0.10. सो 2 प्लस 16 18 डिवाइडेड बाई 0.10. सो आंसर इज व्हाट? रुपीज 180. ओके, यानी प्राइस ऑफ द शेयर एट 20% क्या आया? 180. नाउ नेक्स्ट, प्राइस ऑफ द शेयर एट द रेट ऑफ 40% पे आउट. अभी आपको 40% पे आउट पे कैलकुलेट करना है. ओके, फॉर्मूला सेम D प्लस R अपॉन K. नाउ EPS पे आउट इज कैलकुलेटेड ऑन EPS. सो EPS कितना है? 10. सो 10 का 40% D क्या बन जाएगा? 4 प्लस 0.20 R सेम ही, K इज 0.10 इंटू ब्रैकेट 10 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 0.10. सो 4 का 4 प्लस 0.20 डिवाइडेड बाई 0.10, 2 ना, इंटू ब्रैकेट 10 माइनस 4 6 डिवाइडेड बाई 0.10. सो 4 का 4 प्लस 6 2 ज़ा 12 डिवाइडेड बाई 0.10. सो 12 प्लस 4 16 डिवाइडेड बाई 0.10. सो आंसर इज व्हाट? रुपीज 160. क्लियर? नाउ प्राइस ऑफ द शेयर एट विच पे आउट? प्राइस ऑफ द शेयर एट 80%. प्राइस at the rate of 80% payout. So P dividend is calculated on EPS. So formula तो आपको भी याद रखना ही है. So 80% क्या होगा? 8 plus D plus R upon K. So R 0.20, K 0.10 into bracket E 10 minus payout 8 divided by K 0.10. So 8 का 8 रहेगा plus 0.20 divided by 0.10 2 into bracket 10 minus 8 2 divided by 0.10. So 8 का 8 plus 2 2 ज़ा 4 divided by 0.10. So 8 plus 4 12 divided by 0.10. So answer is what? रुपीज 120. So आपका फर्स्ट आंसर इज ओवर. कैसे समझना है? R EPS 10% दिया था, K 10% दिया था, एंड पे आउट रेशियो 20 और 40 और 80 दिया था. आपको प्राइस ऑफ द शेयर्स कैलकुलेट करना था बाय यूजिंग वॉल्टर्स मॉडल. इफ R 20% होगा तब, B केसेस में क्या होगा? इफ R इज 10% होगा तब, एंड C R इज व्हाट? 8%. सो हम लोग क्या कैलकुलेट किया? R 20% लिया, EPS 10 दिया ही था, K 10% दिया ही था और पे आउट रेशियो दिया ही था. ओके, सो हम लोग ने कैलकुलेट किया प्राइस ऑफ द शेयर्स 20% पे, प्राइस ऑफ द शेयर्स 40% पे, एंड प्राइस ऑफ द शेयर्स 80% पे. ओके, सो ए का आंसर ओवर. सो व्हाट इन्फ्रेंसेस कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द अबव एक्सरसाइज? सो ए में आपने क्या आपने कंक्लूजन निकालोगे? सो यहाँ पे आपको क्लियर कट समझ में आएगा कि R 20% है और K कितना है? 10%. सो विच टाइप ऑफ फॉर्म इट इज? इट इज अ फॉर्म ऑफ ग्रोइंग फॉर्म ना. नाउ ग्रोइंग फॉर्म है, सो ग्रोइंग फॉर्म है. नाउ ग्रोइंग फॉर्म के लिए ऑप्टिमम पे आउट रेशियो क्या होना चाहिए? 0%. ओके, इन शॉर्ट 0% पे प्राइस मैक्सिमम आता है. नाउ उसका और कंक्लूजन क्या है कि जैसे पे आउट रेशियो बढ़ाते जाएंगे, 0% से आप बढ़ाते जाओगे तो प्राइस ऑफ द शेयर्स क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी. ओके, सो अभी आप देख लो, यहाँ पे तो 0% दिया ही नहीं है, बट हम लोग खाली कंक्लूजन डिराइव किया. तो पे आउट रेशियो 20% पे प्राइस ऑफ द शेयर्स कितना आया? 180. अभी पे आउट 20 से बढ़ा के कितना किया? 40% किया, तो प्राइस ऑफ द शेयर्स कितना आया? 160. अभी आप देखो 180 से 160 हो गया डिक्लाइनिंग, और पे आउट रेशियो बढ़ाया, प्राइस ऑफ द शेयर्स पे आउट रेशियो 80% किया, तो वो टाइम पे प्राइस ऑफ द शेयर्स क्या आ गया? 120. सो व्हाट इन्फरेंसेस कैन बी ड्रॉन? सो हियर R is greater than K है ना ये सम्स में, that is 20% is greater than 10%, that is 20% is greater than 10%. So it is the case of
it is a case of growing firm. It is a case of growing firm. Thus, for a growing firm, optimum payout ratio will be 0%. Okay, so as payout ratio increases, price of the share क्या हो रही है? प्राइस ऑफ द शेयर डिक्रीज हो रही है ना, प्राइस ऑफ द शेयर डिक्रीजेस. आ रहा है समझ में? क्लियर? सो जैसे पे आउट रेशियो बढ़ाएंगे, एज अ पे आउट रेशियो इंक्रीज करेंगे, तो प्राइस ऑफ द शेयर्स क्या हो गया? डिक्रीज. जो हम लोग ने प्रूव किया कि जैसे पे आउट रेशियो बढ़ाया, 20 से 180 आया, 40 से 160 आया एंड 80 पे 120 आया. ओके, सो प्राइस कम होती गई एज अ पे आउट रेशियो इंक्रीजेस. आ रहा है समझ में? लाइकवाइज आप घर पे कैलकुलेट करना फॉर द बी एंड फॉर द सी. ओके, सो अभी आप बी में क्या लोगे? आर कितना लेना पड़ेगा अभी बी में? 10%. सो बी में आप आर लोगे 10%. ओके, ईपीएस तो दिया ही है सेम. ईपीएस 10 रुपीज़ दिया है. केई कितना दिया है? केई 10% दिया था. ओके, एंड पे आउट रेशियो इज ऑल्सो गिवन, दैट इज 20 और 40 और 80, यानी 20%, 40% एंड 80%. ओके, सो आप ये कैलकुलेट करना. मैं आपका उसका आंसर मैं कल आपको बताऊंगा. ओके, और अगर आप कैलकुलेट किए, ओके, सो आंसर लिख लेना. ग्रोइंग अभी आप समझो, R इज इक्वल टू के, तो ये नॉर्मल फॉर्म होगा. सो हर एक पे आउट रेशियो पे प्राइस ऑफ द शेयर्स क्या आएगा? इक्वल आएगा. ओके, सो एनी पे आउट रेशियो पे प्राइस ऑफ द शेयर्स नॉर्मल में आपका हर एक पे आउट पे आंसर कितना आएगा? ₹100. कैलकुलेट करके ट्राई करना. नाउ अगर आप सी करोगे, सी का आंसर, सी में क्या आएगा? R इज 8% है. R इज 8% है. सो ईपीएस सेम ही रहेगा 10 रुपीज़. के 10% रहेगा. इन पे आउट 20%, 40% एंड 80%. क्लियर? सो अभी यहाँ पे R इज लेसर देन के, सो ये डिक्लाइनिंग फॉर्म हो जाएगा ना. ओके, अभी आपका प्राइस 20 पे कितना आएगा, 40 पे कितना आएगा, इन 80 पे कितना आएगा? अगर आप 20% लोगे ना, 20%, सो आपका आंसर आएगा 20% पे 84 आएगा. देन आप 40% करोगे ना, आपका आंसर आएगा 88 आएगा. एंड जैसे आप 80% करोगे, आपका आंसर आएगा 96. क्लियर ऑल ऑफ यू? तो आप क्लियर कट समझना, बी में नॉर्मल फॉर्म बन जाएगा. सो आपका इन्फरेंस क्या आएगा? कंक्लूजन, R is equal to K. So it is a case of normal form, and for a normal form there is no optimum payout ratio. So at any payout ratio, price of the share remaining constant. But in case of ये कौन सा हो गया अभी? डिक्लाइनिंग हो जाएगा ना. R is lesser than K. ओके, सो डिक्लाइनिंग फॉर्म है. ऑप्टिमम पे आउट रेशियो क्या होता है? 100%. सो व्हाट हैपन? एज पे आउट रेशियो इंक्रीज 20 से 40 से 80, पे आउट रेशियो इंक्रीज करेंगे तो प्राइस ऑफ द शेयर्स बढ़ता जाएगा. बिकॉज 100% करोगे ना, सो प्राइस ऑफ द शेयर्स क्या आएगा? मैक्सिमम आएगा. क्लियर? सो ये आपके लिए होमवर्क है, आप घर पे कैलकुलेट करना. ओके, बाय. हम लोग नेक्स्ट सम बाद में करेंगे.